Good morning. Good morning, everyone. Thank you. Thank you all for joining. You Good guys. morning, sir. Hope I'm audible. Morning, sir. Morning. Good morning. So guys, today again, something on auto and FMCG. Abdur has something on hotel industry. Abdur, where was the news? Abdur, I have not seen that news. In the Hindu and Times of India. Times of India. Acha. Okay, go ahead. What is the news about the tourism? Okay, sir. Just 1 minute. Trishul, you go next. Okay. Yes, sir. Okay, so good morning, everyone. The news is regarding the tourism industry. So the Kerala government has given a nod to INR 77.9 million of Kada Mukkudi backwater tourism. Uh, Basically, it's a project to boost Kochi tourism. Kada Mukkudi is basically a cluster of 14 islands. So that is what the government is trying to promote tourism there. So talking about the numbers of hotels in Kochi, so ICL has 5 hotels. There is one Taj with 93 keys, two Vivanta with 200 keys, and two Ginger with 146 keys. And there is one hotel each of EIH, Lemon Tree, and ITC Fortune. So the implication that I see here is that the nearest branded hotel to this village, they are Vivanta and Ginger, and they are also 13 to 15 kilometers away. So that signals basically a supply gap in the local Kochi tourism. And the conclusion that we can draw from this particular update is that the Vivanta and Ginger, they are poised to benefit the most from this local tourism based on their proximity. However, I also see that the addition of this new destination in the leisure itinerary will lift the length of the stays. Like it will go from 2 nights to 3 nights, probably. The ARR and the occupancy of the existing hotels. Also, what I take from this news is that the scale of tourism in this particular village is not that high as of now. So we cannot expect a greenfield project in Kadamukudi as of now. So the existing hotels will try to accommodate the new tourism that will arise from there as long like the tourism does not rise much there. So that's the update. Update. Okay. So one more something on the tourism part that tourism is increasing in the areas of Kochi as well. Which you said IHCL and sorry, Ginger and Vivanta. What you said. Yes, sir. Okay. Okay, fine. Okay. Trishul, anything on the auto part? Yes, sir. Yeah. So, hello everyone. So, I I I am covering the news regarding the auto industry. So, Indian passenger retail sales jumped 26.6% year on year to 3.8 lakhs 80 units in December 2025. How So, much? How which much? is Sorry. 3.8 lakhs in 2.8. December 25. Yeah. Okay. So, this demand is mainly driven by the rural area. So rural sales grew by 32.4% year on year, which is significantly outpacing the urban growth of 22.9%. So we can say that it is increasing dependence on the non-metro market. So if we look at the for the calendar year 2025 total sales, so the total sales for the car is increased by 9.7% year on year to 4.48 million units compared to the 4.8 units in the 2024. So also OEM dispatch uh, strongly increased by the 14.6% year on year to 2.3 million units in December, while full year wholesale reached to 4.55 million units, which is up by 5.7% YOY. And if we look at the individual company, like among the automakers, the Maruti Suzuki posted a strong double digit growth of 37% YOY, along with the Mahindra also grew by 23%, followed by Tata. Tata has nearly sold about 50K units in the December 25, which is increased by 13% YOY. So this demand recovery gained momentum from the September onwards, supported by GST rate and easing the inflation, improve affordability, One setting the actually, positive. Yeah. Trishul, one this now again. This is getting
वेरी मच टू मच ऑफ डेटा। मैंने तुमको बोला है ना शॉर्ट रखो, तुमको 30 सेकेंड्स के ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है, बिकॉज ओके सर। सब बोर हो जाते हैं, सब बोर हो जाते हैं। तुमको इतने सारी चीजें क्यों बता रहे हो? जितना तुम ओके क्विक सर। हो सकते हो। क्या हाँ हाँ। हुआ है, व्हाट इज दिस न्यूज अबाउट? कि इतना बड़ा न्यूज तुम थोड़ी बताओगे, इतना बड़ा न्यूज है ये तो। ओके क्या हाँ, हुआ? सो ऑटो सर मैंने सेक्टर हैव कैलेंडर इंक्रीज, ईयर का भी, हाँ हाँ, अच्छा ऑटो तो मैं सेक्टर फिर, हैव इंक्रीज हाँ। कितना कितना 27%। ओके, रूरल सेल्स ड्राइव ऑटो सेगमेंट, perfect. Rural segment या has driven the auto December sales numbers to 27% growth. ठीक है, तो 27 में क्या ग्रो हुआ है? अच्छा तो फिर Rural उसका demand drives कंपनी what? वाइज। Rural demand drives what? Which growth? ओके तो पैसेंजर या वो उसके लिए हाँ क्या हाँ, सर, क्या मॉडल वाइज? तो 26%, 27% पैसेंजर ग्रोथ है ना। यस यस हाँ। रूरल डिमांड ड्राइव दिसंबर कार सेल्स, ठीक है, दिसंबर पैसेंजर व्हीकल सेल्स टू 27% ग्रोथ। ओके, यस। ठीक है। अच्छा, ये अप फ्रॉम 3 लाख, अभी 27%, 3 लाख से ऊपर, तो पता ही है ना, 3.2 3.8 लाख हो गया। तुमको ओके पहले ओके। कितना है तुमको, इस बार तुम्हारा सैलरी 10% इंक्रीमेंट हुआ, 1,10,000 हो गया। तो लास्ट या ईयर कितनी थी? 1 लाख। तो पता है ना वो तो। यस यस ओके। फिर समझा? तो जितना शॉर्ट हो सके हाँ, उतना जितना शॉर्ट शॉर्ट में है। ले। और वो इंडियन पैसेंजर व्हीकल पीवी, पैसेंजर मतलब पीवी लिखते हैं, रिटेल सेल्स। जब वो तुमने ऑलरेडी ऊपर लिखा था, वापस नीचे क्यों लिख रहे हो? और अगर एक ही लाइन है 3.8, तो फिर हेडिंग में डाल दो, चल जाएगा। और ओके डेटा कुछ सर। था नहीं ना, 3.8 लाख उधर डाल दो या हेडिंग में। हाँ, तो ओके ये सर। देखो, दिस वाज रिवाइवल। क्यों रिवाइवल हुआ था? उसमें से क्या हुआ है? रूरल सेल्स लेड बाय शार्प रिवाइवल इन रूरल डिमांड, तो ऑलरेडी था, तुमने हेडिंग में सब बोल ही दिया था, वापस इतना बड़ा लाइन क्यों लिखने की जरूरत है? ओके ओके सर। रूरल सेल, ओके। अभी ये क्या है? रूरल सेल्स ग्रो 32%, अभी ये कौन सा सेल्स है? रूरल सेल्स ग्रो 32%, ये तुमने लिखा है। वो मैं तुम्हारा, पैसेंजर व्हीकल का ही है सर, अच्छा तो मैंने वो एक मेंशन करना है। एक सेकंड में तुम्हारा को बोलता हूँ। जब इतना अच्छा तुमने लिखा है, इतना अच्छा न्यूज भी था, तो उसको अच्छे से रिफ्रेम हुआ तो अच्छा लगता ना। मेरे को सुनने को भी अच्छा लगा ना, सब बोर हो जाएंगे यहाँ पे तुम बोल रहे हो तो इतना। जी हाँ, ये तुम्हारा था। तुमने बोला रूरल डिमांड, रूरल डिमांड ड्राइव्स दिसंबर कार सेल्स, ठीक है, दिसंबर पैसेंजर व्हीकल सेल्स टू 27% टू 3.8 लाख, इतना ही है ना, आगे कुछ है नहीं। टू 3.8 लाख यूनिट्स हो गया या हेडिंग। यस। तुमने वापस यही इतना वापस एक लाइन का इतना सब कुछ लिखा था हमने। ओके। अभी ये रूरल सेल्स ग्रो 20, ये कौन सा सेल्स है 32%? ये अगर तुम बोल रहे हो 27% कार सेलिंग कर रहे हो, तो उसमें ज्यादा, ठीक है। कार सेल्स टोटल, तो टोटल कार सेल्स यहाँ पे स्पेसिफाई की, रूरल रूरल डिमांड ड्राइव्स टोटल पैसेंजर व्हीकल्स टू 27%, ट्वेंटी अभी सेवन उसमें से क्या परसेंट हुआ है? तो नीचे सर, रूरल सेल्स ग्रो 32% ईयर ऑन ईयर, सिग्निफिकेंटली आउटपेसिंग अर्बन डिमांड ऑफ 22.9%। तो यही था, इतना ही पैराग्राफ था फर्स्ट। या हो गया ना 3 लाइन? यस। फिर, हाँ, तो अभी उसमें क्या हुआ है? अभी टोटल का रिटेल कार सेल्स, अभी ये रिटेल का आ रहा है, अभी ये कैलेंडर ईयर्स का तुम आ गए बीच में, हाँ। फुल ईयर में। तो वो तो समझाएंगे कि तुमने ट्रांजिशन कब किया। हम्म। तो ऐसे बोल ओके। रुकना होता है कि सर फॉर द फुल ईयर नंबर्स नाउ, या फॉलो नहीं करना होता, रुकना होता है, क्योंकि तुम प्रेजेंट कर रहे हो कुछ चीजें, तुम ऐसे रीड नहीं कर रहे हो। यस यस। तो यहाँ पे रुको, तुम फिलर्स, मैम पूछते ना, फिलर्स यूज करो कि रुको यहाँ पे, या कि अभी, हाँ। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द टोटल कार सेल्स फॉर द फुल, नाउ फॉर द फुल ईयर नंबर्स। सर इन कैलेंडर ईयर 2025, टोटल कार सेल्स ग्रू 7.5%, 7.9% टू 4.8 मिलियन। हो गया। अभी कंपेयर टू क्यों करना है लास्ट ईयर कितना ग्रो हुआ है? क्योंकि जितना ओके तुम नंबर्स जित बोलोगे शॉर्ट। उतना लोग कंफ्यूज होगा, तुमको नंबर्स भी शॉर्ट ही रखना है। यस यस। कि जब बोलते वक्त तीन चार, तुम खुद को ही याद नहीं रहेंगे, तुमको कल मैं पूछू पहले कितना ग्रोथ था, 9.7 सबको याद रहेगा, कितने ग्रोथ है वो याद नहीं रहेगा। और वो यस। प्रीवियस ईयर का क्या करना है, बात तो वही हुई ना। 4.8%, तुम देख लो कितना था प्रीवियस ईयर। हाँ वाई वाई मेंशन कर लिया तो राइट। हाँ, हो गया ना। यस और यस। मिलियन का मैंने बोला एम एम एन ही लिखना है, मिलियन भी ज्यादा मत लिखो बड़ा, तो क्या वो शॉर्ट छोटा हो हो जाए। जाएगा। यस। एंड 4.48 नहीं, 4.5 मिलियन, अप्रोक्सीमेट 4.5 मिलियन लिख सकते हो। 4.48 लिखने की क्या जरूरत है? 4.0 ये भी लिखते, जीरो ऐसा नहीं लिखना है, 4.1। दो ओके। डेसिमल बोला, यूज नहीं करना है दो डेसिमल, यस यस। एक ही डेसिमल यूज करना है हमेशा। अभी यहाँ पे तुमने 3 लाख लिखा है, यहाँ पे 3.80 की लिखा है। मतलब ये छोटे छोटे बहुत इंपैक्ट होती है चीजें, यस। तुमको प्रेजेंट ही नहीं करने आ रहा है वो बराबर, इसके वजह से इफ यू डोंट राइट इट प्रॉपरली, नॉट बी एबल टू प्रेजेंट इट। या फिर ये हो गया, ये एक पार्ट हो गया, एक ही लाइन हो गया। फिर ओईएम डिस्पैचेस हैज आल्सो रिमेन स्ट्रांग इंक्रीजिंग। अभी क्या है ये, क्या है ये, क्या है ओईएम, क्या है, और ये टोटल कार सेल्स क्या है?
सर वो पूरे ईयर का ही OEM डिस्पैच का उन्होंने ये क्या दिया था, तो मैंने वो ये मेंशन। ये 9.7 क्या है, फिर ये 4.8 मिलियन क्या है, और ये 2 पॉइंट क्या है? हाँ ये हाँ नंबर से मैच क्यों नहीं हो रहे नंबर्स? ठीक है, मैं सर वापस से रिफ्रेम करके एक बार शॉर्ट में। ये क्या, ये नंबर्स क्या है? OEM dispatches also remain strong, increasing 14.6% to 2.3 million units. यहाँ पे हमने 4 मिलियन लिखा था, यहाँ पे 2.3 मिलियन से मतलब क्या है? while the full year wholesale reached, देखो ना, समझ ही नहीं आया, while full year wholesale reached 4.4 million units, ये क्या क्या नंबर्स है ये सब? मैंने नहीं पढ़े ये नंबर्स, कहाँ पे वो कहाँ पे मिले हैं, और ये क्या नंबर्स है फिर? मैच क्यों नहीं हो रहा है इससे? हाँ सर, मैं OEM एक बार dispatches चेक वाले कर। होलसेल नंबर्स होते हैं, OEM dispatches वाले हाँ, होलसेल होलसेल नंबर्स में, होते हैं, हाँ। यस। तो तो होलसेल मैंने वो नंबर्स, डिफरेंट पैराग्राफ में लिखना चाहिए था। नहीं तो अभी तुमने यहाँ पे लिखा है 14.4% टू 2.3 मिलियन, यहाँ पे तुमने बोला पूरे कैलेंडर ईयर में 4.8 मिला है, और सिर्फ क्या दिसंबर मंथ में इतना 2.3 मिलियन बिका है, इतना है। नहीं वो सर, मैं एक बार चेक करता हूँ। कुछ नंबर्स में गलत है ना, हाँ, देखो। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में था ये, मैं एक हाँ बार तो चेक गलत करता हूँ। नंबर्स होंगे ये, शायद से कार्स के होंगे, अभी कार के नंबर है, ठीक है, तो ये पूरे साल ये सबके नंबर्स होंगे, नॉट श्योर क्या है ये। फाइनेंशियल यस। एक्सप्रेस में था, देख लेना क्या है। हाँ, चेक करता हूँ सर। वाइल फुल ईयर होलसेल, वाइल फुल ईयर होलसेल 4.4 मिलियन, ऐसा थोड़ी है कि एक महीने में 2 मिलियन बिचे और ये पूरे साल में 4 मिलियन बिचे। हम्म। 200,000 होंगे उतना, ये हाँ, मिलियन नहीं यस सर। होंगे। तो वो भी अलग अलग ना, कि दिसंबर, अभी तुम यहाँ पे फुल ईयर लिख रहे हो, तो फुल बीच में दिसंबर क्यों लिखा फिर आगे वापस? या फिर ये दिसंबर का नंबर, तो दिसंबर का नंबर इधर ही लिखो ना, तुम दिसंबर की बात कर रहे हो तो। यस सर, गॉट समझ रहे इट। हो? या। ओके। अच्छा, ऑटोमेकर, हाँ फिर आओ, ये इंपॉर्टेंट था ऑटोमेकर, अभी तुम आओ कि सर ऑन द कंपनीज पार्ट ऑटोमेकर पोस्टेड डबल डिजिट ग्रोथ ऑफ, अभी क्यों डबल डिजिट है ना, 37%, इसका मतलब है डबल डिजिट। क्योंकि हम्म। वो लोग जर्नलिस्ट है, वो लोग का काम ही है नंबर्स बढ़ाना, उनका काम ही है वर्ड्स, क्योंकि उनको पूरा पेज फिल करना होता है, यस सर। वो पेज फिल नहीं करना है। हम्म। मारुति सुजुकी posted a growth of 37%, that is year on year to 178,000 units, followed by Mahindra 23% at 51,000. While Mahindra followed by Tata Motors 50,000 with an increase of 13%. ये बराबर था, इसमें भी ओके। बराबर लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। Maruti posted a growth of 37%, the highest ऐसे लिखा है, highest growth of 37% to 178,000. The demand recovery gained momentum supported by GST rate cut last year, तो ठीक है, ये तो तुम्हारा एंडिंग पॉइंट। कितना अच्छा न्यूज़ है, बाद में भी थोड़ा काम में अच्छा। आएगा ये न्यूज़ लिखने को। यस सर। हाँ, डेटा पॉइंट्स भी है उसमें, तो फिर क्यों अननेसेसरी इसको स्पॉइल करना? तुम बता भी नहीं रहे। मैंने कितने पॉइंट में बोला? 3 पॉइंट में बोला, यस। दिसंबर, फुल ईयर, और ये और ऑटोमेटिक, कंपनी वाइज, यस। कंपनी वाला, और फिर तक कंक्लूजन था ये यस सर। तो तीन ऐसे ही होता है, 3-4 पैराग्राफ में ही पूरा, चौथा पैराग्राफ हमेशा कंक्लूजन होता है, वो भी तो तुम्हारे हिसाब से बोलना होता है वो, हम्म। उसके ऊपर ज्यादा कुछ बोलना ही नहीं है। ओके। यस सर, गॉट इट। यस, विल वर्क ऑन दिस। हाँ, एक बार वापस तुम रिफ्रेम करो, ये अच्छे से यस लिखा सर। है, लिखा अच्छा है, फिर इतना बड़ा क्यों है ऐसा? यस सर। ओके। ओके शुभम, एनीथिंग ऑन FMCG? Yes, So, sir. sorry to interrupt. I just had the same news, and I only have a different like only one different angle towards the same news. Could you also check mine? One you have sent? Yes, so I've sent you. Sir, I also sent the same news, sir. Yeah. I have not received it. I said, Satiran, you sent it just now. Yes, sir. After Sorry. 11 a.m., after 10 a.m., your news doesn't have any value. Mm, Where is it? Swani, which number you have sent? I have not received your news. 262, I think it ends in. Let me check. I've just sent you a hi as well right now. Okay. Okay, I missed it. Yeah. Yeah, Swani, sorry. Go ahead. So Go ahead. it's the same news. Most of the points are similar. The only different thing is that rural four-wheeler demand is not premium led; it is volume led. So entry hatchbacks anchor the space, while rugged SUVs like Bolero and Scorpio drive growth and margins as well. So the No, once again, Swani, start again. Start again. okay, I'll start from the beginning, sir. Yeah. December 25 retail car sales rose 26.6% YoY to 379,671 units, led by rural growth You of. can mention while speaking now, you can mention it 3.7 lakhs unit. Okay. 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 Or 300, we usually say 300,000 units. Okay. 379,000 units, that's a better way Mm. of.
300,000. Correct. Sharply higher than 22.9% YOY in urban markets. For current year 25, total PV retail reached 4.5 million No, units. go slow, Swani. 1 second. Okay. See, Up- retail sales increased 26 point, car Retail- sales increased 26.6% to 379,000 units was the first paragraph, first Yes. line. Okay. Yes. In that, what had happened? Led by rural, 32%, and Which is higher than the almost 23% YOY in urban markets. urban markets. Okay, fine. Stop. For current, okay. Now, For current year 25, total PV retails reached 4.5 million units, up 9.7% YOY. So the higher rural mix supports volume-led revenue growth for mass OEMs with strong hinterland penetration. Rural affordability improved post GST 2.0 rationalization, aiding small cars and entry SUVs. OEM dispatches rose to 26.2% YOY to 400,000 units in December versus the 300,000 units last year. not required. Okay, so then we come to the company distribution in December growth, which is 37% highest in Maruti and followed by 23% Mahindra. In Mahindra, GST cuts on small cars and mass PVs improved affordability, which lifted registrations in December to 26, almost 27% YOY. Rural four-wheeler demand is not premium-led, it is volume-led. Entry hatchbacks anchor the base, while rugged SUVs like Bolero and Scorpio drive growth and margins. We've seen Bolero and Bolero New contributing almost 16% of Mahindra's total volume in recent reportings, which also comes significantly from non-metro routes. That's about it, sir. Okay. No, so you should end your your news, and then even while speaking in between, now I should know where are you linking things. Okay. Now, when you said the first paragraph, okay, first paragraph, see, you have written, no need of presenting the same way as you have written it. Okay. Okay, you can improvise a bit. It should look like a conversation All right. rather than just reading it, because now you are reading all the things you have written. Correct. Okay, Correct. that's specifically you mentioned that for mass OEM with strong hinterland penetration. Yeah. Not required. While writing is fine, but while speaking it, what happened that what has led to the growth was higher rural mix led by volume-led revenue growth. That's it. Okay. Keep it short. Okay. And what all things, this all led to the rural affordability. Why all these things happen? So it's because of the rural affordability, So which yes, improved by GST. Yes, main point to highlight was the GST 2.0 rationalization, and also that rural areas, so the demand is not premium led. Like we talk about premiumization, it does not hold the same in rural areas. It's mostly what is more efficient. Yeah. And cost efficient mainly. So that's the main point I would like to highlight So here. this is the last highlight, the last Yes. point that you wrote. The rural four-wheeler demand is not premium led; it is volume led. So Yes. that could have come in the first, when you said that Correct. rural was, Correct. rural was slightly sharper. Yeah. Rural was 32% growth. Yeah. So what led the rural growth? So in the rural, the four-wheeler segment was not a premium led; it was basically a volume led. Okay. So you could have linked at the start only. Okay. That 23% growth, 32% growth in rural. Where is that coming from? All right. Okay. Got it. Rather than writing, so you can at the end you can write then rural affordability. So why this all happened? Why the non-premium led has increased because of the GST rate cut. Okay. Right. So that could have been linked. There was no point writing this line at the end. Rural. So this one. Then the entry hatchback anchor the base, while rugged SUVs like Bolero and Scorpio drive the demand for. So this, Bolero, Scorpio was made by Mahindra. Yes. So when you mention about Mahindra, that Mahindra growth was 23%. Yeah. In the second paragraph after that, you can say that the Mahindra growth was that should majorly led by Bolero and Scorpio. Could have Yes. linked, left sync. Got Because now it looks everywhere. The news is good, but it's just to be I did a aligned. lot of connecting the paragraphs only, so that Correct. So connecting the paragraph, it always helps. yeah. Even while the person who is listening, he will understand. Okay, what are you trying to say? Or else Got it will just be like reading. No one will understand. Correct.
So Okay. when I was an analyst, the point was even a backend guy, who was a non-finance guy, should understand what are you talking in the call. Hmm. Because stock market is for everyone. It is not that you are a finance guy, so you should know only about stock market. Should know, everyone should know about it. So you should speak it from a perspective of a very layman terms and link it with, what are you talking about? Okay. Okay. So let's say Yeah. your younger cousins or younger siblings should also know that what are you speaking about. Yes. They should not get bored. Okay. Got it, sir. Thank you. So you can just reframe this and send it again and post on LinkedIn. Looks Yes. good. This is good. Okay. Yeah. So just link this. Okay. Yeah, Shubham. On the Yes, sir. So I have covered the news regarding FMCG consumption. So the FMCG consumption shows early sign of recovery. Like Indian FMCG sector is witnessing a gradual demand revival, supported by strong macroeconomic indicators and easing inflation. And according to numerator report, like household FMCG consumption is expected to grow around 5% in early months of 2026, driven by improving consumer sentiment. And while annual FMCG growth stood at 4.2% till October, lower than lower than last year, 4.9% consumption rebounded to 5.3% in the 3 months ending October. Making a clear turnaround after nearly 18 months of slowdown, upward GDP growth expectation, and falling food price and low overall inflation have encouraged manufacturer to pass on cost benefit to consumer. And easing price are also expected to increase shopping frequency and boost demand for premium and branded products. As the price gap between branded and unbranded food narrow, RBI consumer confidence index further indicate improving shopper sentiment. शुभम And नथिंग इज लिंक नहीं हो रहा है चीजें, तुम बस एक के बाद एक के बाद एक पढ़ते जा रहे हो. so See, should I come to एक तो तुमने इतना बड़ा लिखा है, इतना बड़ा लिखने की कोई जरूरत नहीं. मुझे इतने तुम्हारे आर्टिकल में सिर्फ 3 पॉइंट बताओ और कुछ नहीं चाहिए मुझे बस. हाँ सर, FMCG shows early signs of recovery. Why? because of the like easing inflation and strong macroeconomic indicators. Fine. Easing inflation and strong. अच्छा, anything specific, data specific है उसमें? Data FMCG के specific, लिए, FMCG के related, हाँ. like it will grow around 5% in early month of 2026. And नहीं, ये ना FMCG stood the annual growth stood at 4.2% till October, yes, which was versus, you can say, versus 4.9% last year. yes, The consumption is rebounded to 5.3% in 3 months ending October. Okay. अब ये सब okay, क्यों हुआ है? we because of GST like नहीं, ये लिखा है तुमने, upward GDP growth expectation, falling food prices and lower inflation have encouraged. हाँ लिखा है. हाँ, हो गया. और क्या है? और थर्ड और पैराग्राफ में क्या है तुम्हारे? और फोर्थ पैराग्राफ में like और क्या बताना तुमको अभी इसके बारे में? हो गया, इतना तो मुझे समझा कि FMCG में ग्रोथ हो रहा है. FMCG का तुमने डेटा पॉइंट नहीं बताया सर, 4.9% से ग्रो हो रहा है, अभी 5.3% अक्टूबर में हुआ है. इट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बिकॉज ऑफ अपवर्ड रिवीजन इन ग्रोथ एक्सपेक्टेशन. और yes, कुछ बताना बाकी अभी? और like leading FMCG companies, Macro and Dabur also saw early sign of recovery in October and December हाँ. due to Leading GST companies like revision. Marico, Dabur have shown early signs of recovery in October and December quarter. Yes, ओके. वो तो पता है कि बिकॉज ऑफ GST करो, वापस लिखने की क्या जरूरत है, वो ऑलरेडी लिखा है तुमने. हाँ. हाँ, फिर और भी था ना, डेटा फ्रॉम किनारा स्टोर्स. Yeah, so overall, like favorable macro condition are setting the stage for sustained recovery in FMCG consumption. And like just for update for calendar year 25, FMCG sector underperform, declining by 7.86%, and top loser were Patanjali, Nestle India, and ITC, while Tata Consumer and Britannia were the top performer, delivering return of around 25%.
5%, बस हो गया। तीन चार लाइन ही बोलना है तुमको, बस तुम इतना बड़ा क्यों लिख रहे हो? हाँ सर। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड प्लानल बाय न्यूमरेटर रिपोर्ट हाउस होल्ड एफएमसीजी क्योंकि ना तुम जो लिखते हो ना, तुम बात भी वैसे ही कर रहे हो फिर। क्योंकि ना आई विल से द अटेंशन स्पैन इज वेरी लो। मेरा भी अटेंशन स्पैन बहुत लो है कि तुम इतना बड़बड़ क्यों कर रहे हो। मुझे चार चीजें बताओ, बस हो गया, क्योंकि मुझे इतने लोगों की सुनना है। हाँ। तुम भी तो हो ना, तुम भी तो बाकी लोग की सुन रहे हो, कितना सुनोगे तुम? एक ह्यूमन यस का राइट। कैपेसिटी कितना होता है सुनने का? 3-4 पॉइंट ऐसे बोलो कि बस याद रहने चाहिए। 4 पॉइंट कि एफएम रेजिम में क्या हुआ था, कि हेडिंग तो है ही, तो मुझे पता है तुमने न्यूज अच्छा लिखा है, न्यूज अच्छा सिलेक्ट किया है, उसमें क्या हुआ है। जैसे अगर चलो आज मैंने पढ़ा ही नहीं होता है, ठीक है, ये सामने हाँ है ये आर्टिकल, क्या हुआ है ये आर्टिकल में? इजी इन्फ्लेशन क्यों हुआ है, तो ये तो लिखा है इजी इन्फ्लेशन मैक्रो इकोनॉमी, तो क्या हुआ है इसमें? तुमने ये बता दिया, ग्रोथ 4.2%, 5.9, 4.9%, अभी 5.3% हो गया। अच्छा, इसमें और एक चीज है, तो तुमने लिखा था कि ब्रांडेड और प्रीमियम में, प्रीमियम प्रोडक्ट्स एंड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में गैप कम हो गया है। हाँ। हाँ, एंड आरबीआई कंज्यूमर इंडेक्स भी इंप्रूव हो रहा है, दिस इज ऑल्सो साइन ऑफ इंडिकेशन। वो तुम ऊपर डाल सकते थे उसमें कि वाई इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 5.3%, ओके। हाँ ठीक है, वो भी चौथा पॉइंट में डाल सकते थे। एंड ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन सर, वन मोर ऐसा बोलना है कि सर वन मोर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दैट द ब्रांडेड एंड अनब्रांडेड gap has been declining. ओके। हाँ Easing prices is also expected to increase shopping frequency and boost demand for premium products. ऐसे बोल सकते हो कि ये तो अलग पॉइंट हो गया कि द गैप बिटवीन डिमांड ब्रांडेड एंड अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स इज आल्सो डिक्लाइनिंग। तो यहाँ पे लिखा था वो क्या रीजन के वजह से हुआ था, द गैप बिटवीन अनब्रांडेड, मैंने बोला है ओके। हाँ, it is consumption is क्यों हो रहा है, बिकॉज कंजम्पशन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन द प्रीमियम कैटेगरी एंड ब्रांड्स, ऐसा है। हाँ। तो वो तुम बोल सकते कि बिकॉज ऑफ कंजम्पशन एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन द, तो ये जो बोल रहे हो ना ग्रोथ होने वाला है, तो वो पैराग्राफ में तो मिल कि इसमें इट वाज ग्रोइंग बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेड कंजम्पशन एक्सपेक्टेड टू ग्रो इन द प्रीमियम प्रोडक्ट्स प्रीमियम प्रोडक्ट्स। एंड दैट विल रिड्यूस द गैप बिटवीन ब्रांडेड एंड अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स। स्ट्रेट अप हो गया ना। कैसे मैं लिंक कर रहा हूँ चीजें, तुम अगर लिंक नहीं कर पाओगे ना, तो फिर वो सिर्फ ऐसा हो जाएगा कि तुम न्यूज पढ़ रहे हो, तुमको भी किसी को फायदा नहीं होगा ना किसी और को होगा। हाँ सर ठीक है। यू हैव टू क्रिएट दैट वैल्यू क्रिएट करना है खुद के लिए कि तुम व्हाई आर यू डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, बिकॉज एवरीवन ओवर हियर ऑल आर इन द क्लास, हर एक का प्रेजेंटेशन पर्सपेक्टिव अलग होता है। तो तुमने इसमें क्या पढ़ा है, शायद से किसी और ने और कुछ पढ़ा होगा, काफी किताबें किराना स्टोर के बारे में लिखा था, वो तुमने मिस किया, फाइन, जरूरत नहीं थी, बट शायद से वो किसी और अच्छे वे में बता दे। सर वो भी लिखा था मैंने लास्ट में, फोर्थ पैराग्राफ में लिखा है, किराना स्टोर किराना वाला। लिखा है तो ज्यादा हो गया ना, वो तुमको सिलेक्ट करना है बात क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली हाँ सब चीजें बात में बताना। तो ये तो कितना बड़ा आर्टिकल है, ये तो 3 पेज का, ऑटो तो 3 पेज का आर्टिकल है, तुम थोड़ी इतना बात करोगे 3 पेज पे। ओके ठीक है सर। हाँ ओके अविनाश, Yes, sir. व्हाट इज इट? हाँ बोलिए, व्हाट इज दिस न्यूज़ अबाउट? Sir, are you able to hear me? या आई कैन हियर यू, यस। Yes. I have today written the news on FMCG Godrej consumers. So should I present? या प्रेजेंट। Okay, sir. So we can see that revenue and demand is increasing for Godrej consumers because of normalization of tax rate and not due to cyclical demand. As we can see in Q2, the people were deferred purchases because of there was signals regarding the GST tax cut rates, and we can see in Q3 revenue had shoot up by 4% for Godrej and peers like Dabur. But it states us that sales are returning to normal levels despite of earlier quarter weak sales and not due to boom in sales. Secondly, we can see that falling inflation and reducing tax cuts supports gross margin expansion for Godrej consumers. We can see that earnings quality and margins are improving due to the cost per sale is reduced and not because of the increasing unit sold. This states us that we can conclude from this that majority this revenue shoot up for Godrej is because of
macro factors and not because of increasing demand. Okay. So what is your take? I think it should, so revenue is increasing because of, just because of the tax rate, not of increasing, Yes, not yes. because of the demand. Sales are returning to their normal levels. Okay. Yeah. Okay, fine. So Godrej consumer should be avoided. No, it is stable, means hold recommendation, not a buy recommendation. Not to buy, not to sell. Okay, there is, Yeah. fine. Okay. Fair enough. Yeah, Darshan? Yeah, hi sir. Am I audible? Hello, am I audible? Yeah, Darshan, go ahead. Yeah. So I will be talking about the QSR segment. So let me start with we know about the recent merger between the Devani and the Sapphire Foods. But before that, we have to understand the Indian QSR market. So India's F&B market is around like $100 billion, and QSR accounts for approximately $25 billion market. But it's a consolidated market. Because why it's a consolidated market? Because back then in 2015, whenever a new KFC, McDonald's, or any Domino's store would open, we would go and like to eat outside, and it was a status or like a proud achievement for us. But right now, if you see, on the cost side, it has been like increased a lot, because with the high rentals, with the wage inflation and the rising food cost, the margins has been deteriorating completely, especially the metrics for the QSR space. The same store sales growth, which is 3SG, has been negative or flat for both Devani and Sapphire. So now coming to the merger, why did Devani and Sapphire Foods decided to merge? The first thing is their parent company, M Brands, KFC, which operates like as portfolio of brands like KFC, Pizza Hut, and I think tacos. They were in the same space actually. I didn't understand why एक देवानी करने की necessary थी और एक Sapphire Foods, because almost they were selling the same thing. Because in a city like Bombay or anything in Pune or anywhere in Bangalore or somewhere, if a Sapphire Foods KFC और a Devani Foods का KFC अगर दोनों साथ साथ, या फिर पिज्जा हट भी अगर एक ही एरिया में दो स्टोर्स है, इंस्टेड ऑफ लाइक क्रिएटिंग लाइक डबल सेल्स और लाइक डबलिंग देयर रेवेन्यू, वो एक दूसरे का शेयर खा रहे थे, बिकॉज देयर पेरेंट कंपनी वाज सेम. एंड एज अ कंज्यूमर इट डज नॉट मैटर टू मी, but if you look from an business perspective, this was the problem. And similarly what happened, but the rent and the cost inflation started increasing, so they decided to merge, because it was more of like a survival merger rather than like ki, we want to create a lot of expanding kuch revenue synergy aega, nahi, but it was mostly on the cost side benefit. So the cost side benefit, what is my take is that annual synergies would help them to save around like 2 to 2.25 billion rupees from the second full year of the merger, and EBITDA would increase uh, positively from the financial year 27. And also from what the management and the promoter said, ki, the Ravi Jaipuria, who also own Varun Beverages by the way, he said that they will be making around annually around $1 billion sales from both the entities, around by operating around 3,000 stores. Either brands from Biryani by Kilos, new brands like Mango, again KFC, Pizza Hut, and other brands. So it will be interesting to see how the QSR space will be structurally. There will be any structural shift, or there are chances for revival, or it will go again in the same way down the way. दर्शन, ये न्यूज़ तो काफी पहले आ चुकी, मतलब काफी टाइम हो गया, आगे 2 दिन हो गया. हाँ बट हाँ हो गया था, बट ये नंबर्स और ये मतलब बाकी सब कुछ मतलब रिसेंटली आज की न्यूज़पेपर में प्रमोटर ने दे दिया था ना. Yeah, the food service market is around 100 billion. Yeah. Yeah, so merger, I am not a fan of merger. Whenever there is a merger, it is a skeptical thing कि merge कर क्यों रहे हैं. And obviously cost के लिए merge कर रहे, तो it is to get 2 billion बचाएंगे तो ठीक है. Where we always talk about growth. Cost बचा के मतलब ऐसा हो रहा है कि तुम savings बोल रहे हो कि मेरा growth कैसे होगा, तो मैं और बचाऊंगा पैसे. Wait. Let's see how it, yeah, correct. Let's see how it works on. I don't like any of the brand personally. Yeah, मतलब consolidate भी बहुत हो गया ना, like people we don't like there is no pattern of going eating with KFC or Pizza Hut anymore compared to other. KFC, Pizza Hut, Costa Coffee, I think, and फिर Yum brands I have not seen, मतलब don't like it. I don't go only in fact to any of this brand. सर अगर काउंटिंग इरेगुलरिटी है, मतलब अगर कुछ नंबर फ्रैगमेंटेड है, तो वो मर्जर से वो भी छुप जाते हैं, तो इट कुड बी अ रेड फ्लैग.
mergers are very rare. Mergers जब भी होता है ना, it is usually merge कब होता है when two large companies merge. कि जब आपस में merge कर रहे हैं, मतलब उनको वही नंबर छुपाने होते हैं. जैसे HDFC बैंक एंड HDFC जो merge हुआ है, सबसे स्टॉक उधर का उधर ही है. वो बोलते हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव. अभी HDFC का इतना ब्रांड तो कोई ज्यादा सवाल नहीं करेगा. But when it is a smaller company like this, unnecessary saying कि हम largest player बन जाएंगे, मतलब growth कब है largest player बन के, ऐसा है. कोई सर आइडिया इन क्विक वोडाफोन मर्जर क्या कॉमर्स जो हुआ है ना, था? ये आइडिया क्विक इन वोडाफोन कॉमर्स, का भी यही था ना? क्या बोल रहे हो? सॉरी. ये क्विक कॉमर्स है लाइक जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं वो काफी ग्रो हो रहा है अभी ये मार्केट. लाइक जो लोकल प्लेयर्स हैं उसमें लोग काफी प्रेफर करते जाना. Correct. And this, I am not. कोई merger is always a difficult thing to understand. Acquisition ठीक है. Merger is एक तो कितना बड़ा कंसोलिडेशन होता है कि सब चेंज होते हैं, नाम चेंज होता है. अभी दो कंपनी का नाम क्या रखेंगे, ऐसा एक के शेयर्स उसको दे, कितना अकाउंटिंग चेंजेस आता है. So sorry Bobby, Harsh, Ankita, sorry I have to leave. मुझे अनिकेत का एक रिपोर्ट है वो मुझे करना है, तो you can share your news tomorrow, Ankita. Sorry for that. क्या? Sir, I have a doubt. It हाँ. will only take few minutes. Sir, now that the results season will come, so how do we make news regarding that? Like, what type of analysis should we do in that? हाँ, so I will tell you in the evening. सैटरडे संडे को बताता हूँ कैसे करना है. पहले तो Okay. तुमको नंबर्स डालने हैं, वो जो हमने डाला ना सैटरडे संडेज को. यू हैव टू Okay. पुट द नंबर्स फर्स्ट. उसके बिना न्यूज़ लिखना कुछ मतलब का ही नहीं है. एंड फिर कॉन्फ्रेंस कॉल्स होते हैं, वो सुनना है. All अभी तो right. अपने टाइम है. FMCG ऑर्डर नंबर्स आने को टाइम है. इट विल कम अप्रोक्सिमेट सॉरी लेट जनवरी और फेब में. तो नेक्स्ट Okay. वीकेंड को बताता हूँ मैं क्या करना है. ठीक है, वही बताता हूँ. All right, sir. So Aniket, your report looks good. मतलब first glance looks very good. And okay. या सर. ये क्या था? रेवेन्यू प्रॉफिट है. अच्छा नहीं, रेवेन्यू डालो ना, प्रॉफिट डालने की जरूरत नहीं है. ओके प्रॉफिट क्योंकि बाद में आता है वो एंड में. ये ठीक CAGR है. तुम ये दिस लुक्स डजंट लुक गुड. तुमने किया ही कैसे? CAGR यहाँ से होगा, यहाँ से होगा ही नहीं. नेगेटिव है. हाँ, वो नहीं होता. ऐसा नहीं होता कि माइनस से प्लस नहीं होता है. वो तो ओके. यहाँ से ही होगा. यू कैन नॉट से कि 265 से ये इसका ग्रोथ नहीं मिलता है आइडियली. फ्लैगशिप होटल 20,000 कीज. तो कीज एक डाल सकते हो. कीज रेवेन्यू बाय ब्रांड. अच्छा ये ऐसा नहीं करना है. ये तुमने क्यों डाला है? इफ आई आस्क. वो जगह बच रही थी सर उधर, तो आई थॉट कि लिख देते छोटा सा. नहीं तो मैंने बोला था ना वो जगह बच रहे तो वो ये डालो, लोकेशन का डालो. कहाँ पे मेजर लोकेशन कहाँ से? ये जो है कहाँ सिलेक्शन, ये सब लोकेशन कहाँ से? लोकेशन नीचे डाली है सर, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल दोनों. अच्छा यहाँ पे डाले. ओके. हम्म. नहीं जगह बच रहा था ना, तो क्या कर सकते हैं? चार्ट शुड बी ऑन द राइट हैंड साइड. ओके. ये लेफ्ट हैंड, क्योंकि हम पढ़ते हमेशा लेफ्ट से. ठीक है, तो राइट पे नहीं लिखना होता. तो चार्ट लेफ्ट पे, और फिर तुम लिखना था ऐसा एक ही लिख दो. व्हाइट स्पेस फिर चलेगा, चल जाएगा ठीक है. थोड़ा बहुत, पर इतना पूरा मतलब इट शुड नॉट लुक लाइक इसका पार्ट है वो. ऐसा नहीं लगना चाहिए. मुझे लग रहा है अभी इसका पार्ट है वो. ओके. तो एकदम बीच में आता है, ऐसा है ना. इसी से बीच में ही आएगा सिर्फ इतना ही. फिर ऊपर नीचे का रहेगा तो ठीक है, इट्स फाइन. कि अगर वो रह रहा है तो व्हाइट स्पेस रहे तो कम करो व्हाइट स्पेस थोड़ा. एक थोड़ा बहुत बड़ा पैराग्राफ लिख दो. ठीक है सर. एंड नहीं ऐसा नहीं करना है. बॉक्स नहीं है, इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन. अच्छा. बॉक्स फिक्स नहीं. वो बताया था ना एक रिपोर्ट में. मैंने सैमी होटल्स का रिपोर्ट भेजा था ना, उसमें था. देखो हाउ दे हैव रिटन. सर बट जैसे ये एडजेसेंट है दोनों, तो वो लाइन में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे एग्जिबिट 1 और 2 को? एक सेकंड. तो ये इट शुड बी दिस वे, एक लाइन में. अच्छा ऐसे. ऐसे हाँ. ओके. शुड बी ऐसे. चलो तुम दो अलग अलग कर सकते हो. लोग ने मिक्स किया तो इट्स फाइन, वो उनको कुछ दिखाना होगा. बट स्ट्रेट लाइन यहाँ तक, दूसरा लाइन यहाँ से, ऐसा भी कर सकते हो. अब ये लोग ने मिक्स किया, उनका हो गया. यूजुअली ऐसा करते हैं. तो क्या ना व्हाइट स्पेस देखो इसमें ना, तुमको किधर भी व्हाइट स्पेस नहीं दिखेंगे. करेक्ट. तो ये उनका पर्पस होता है करने का ऐसा. ठीक है सर.
लाइन एंड बॉक्स नहीं, क्योंकि बॉक्स इट डजंट लुक गुड। हाँ, इसको तुम ठीक है, अभी ये थोड़ा और क्या रेवेन्यू ब्रेकअप 72% था। अच्छा, इसमें ना डार्क लाइन्स डालो, डार्क से चालू, डार्क एंड देन गो लाइट लाइट लाइट, अच्छा। बिकॉज वी हैव टू हाईलाइट ना कि ताज है। करेक्ट। और ये तुम ना सिर्फ इतना इसका बड़ा, ये तुमने शायद कॉपी पेस्ट किया होगा ना, एज अ पिक्चर कॉपी पेस्ट किया होगा। नहीं सर, ये एक्सेल से करा है। एक्सेल मेरा से किया कैसे है दिक्कत आ रही कि मैक में वो एक्सेल से सीधा वर्ड में कॉपी नहीं होता, तो वो पहले गूगल शीट में करो एंड देन यहाँ पर, तो वो पिक्सेल्स फट रहे नहीं हैं। नहीं, होता है वर्ड से कॉपी तो, ये थोड़े पिक्सेल्स नहीं, पिक्सेल्स होते हैं बड़ा, क्योंकि इनका कैसे हुआ, ये लोग भी ऐसे ही करते हैं, हम भी ऐसे ही करने के। लुक्स क्लीन ना, या एक्सेल से ही कर हुआ है ये। केस ऑफ नंबर एक्सेल में ही होता है, शीट से मत करो, मतलब गूगल शीट से मत करना, और एक्सेल पे ही वो ना कॉपी पेस्ट, नॉर्मल कॉपी पेस्ट कर तो हो जाता है। एंड फिर ना, क्योंकि अभी ना तुम इसके फॉन्ट नहीं बढ़ा सकते फिर ऐसा कॉपी पेस्ट करोगे तो। हाँ, फोन नहीं बढ़ा सकता। हाँ, तो फिर ये दिख नहीं रहा है ना ये क्या लिखा है, बिकॉज 100 इज व्हाट इज केप्ट एज द स्टैंडर्ड रीडिंग। अभी मैं तो स्क्रीन पे यूज कर रहा हूँ, बट इफ यू लुक एट ना एनी लैपटॉप या इसमें तो जूम है ना, ये 100 ना, बस ऐसे ही रीड होगा ये। सो अगर इसमें नहीं दिख रहा है, तुमको तुमको अगर तुम्हारे स्क्रीन पे ये ऑब्वियसली नहीं दिख रहा होगा कि कम है ये काफी, हाँ, वो छोटा है काफी। छोटा हो गया काफी। हाँ, तो वो इसके लिए कॉपी पेस्ट करके, ये भी देखो, ये भी नंबर्स ना दिख नहीं रहे, इनके दिख रहे हैं, हाँ, विजिबल है सर। इनके विजिबल है। तो वो क्यों है, क्योंकि वो तुम जब कॉपी पेस्ट करोगे तो नॉर्मली एक्सेल से जो है ना कॉपी एंड डायरेक्टली पेस्ट कर देना, यहाँ पे आ जाता है ना। ये तुमने बॉक्स डाल के किया होगा ना, तो कॉपी पेस्ट हो जाता है वो। And फिर यहाँ से तुम आने के बाद यहाँ पे तुम उसके ये बढ़ा सकते हो, वर्ड पे ही तुम उसका। कल ना एक वीकेंड को, वरना मुझे वो तुम्हारा फाइल भेजा जहाँ पे किया है, मैं तुमको करके दिखाता हूँ वर्ड पे कैसे डन होता है। सर। ठीक है, ये तुम बड़ा, दिस ना यू कैन स्ट्रेच आउट अ बिट ना, बड़ा कर सकते हो। क्यों इतना कम दिख रहा है, तुम्हारा लिखना भी स्पेस कम हो जाएगा। ठीक है सर, ताज इसको। सिलेक्शन, विवांता, गेटअवे, जिंजर, और फिर अम्मा और वो भी डाल दो अगर है तो तुम्हारे पास। ये क्या रेफ, अच्छा रेफ पर है ना ये, ओके ठीक है। रेफ पर के साथ और सामने क्या डाल सकते हो तुम, एडीआर डाल सकते हो इफ पॉसिबल चार्ट्स में, अगर तुमको फ्लेस ही करना है तो। रेफ पर एंड एडीआर वो है ना, पीपीटी में दिया हुआ था ना एडीआर, मुंबई और इसका। हाँ सर। हाँ, वो डाल सकते हो। अच्छा, जब भी तुम नया करते हो ना, एग्जिबिट नया बनाते हो ना, जैसे ये इसको ना तुमको लिख सकते हो, रेफ पर इसका क्यों ज्यादा है, इसका क्यों कम है। तो तुम ओके। यू कैन राइट है ना कि रेफ पर ऑफ होटल्स का, है ना, ताज इज हैविंग द हाईएस्ट रेफ पर बिकॉज इट्स अ लग्जरी प्रोडक्ट वेयर एज सिलेक्शंस एंड आर इनटू नो ये राइट मोर में वही लग्जरी। लिखा था सर, ये नीचे किधर, छोटे पैरा में, ये वाला। अच्छा हाँ, इसमें, हाँ तो ये तुम पैराग्राफ लिख सकते हो, उसके नीचे तुम डाल सकते हो। ठीक है, डन। ठीक है, जैसे तुमने यहाँ पे किया है, तो दिस लुक्स परफेक्ट। इसलिए देखोगे ना तुम इनके रिपोर्ट्स में, व्हाट इज द पर्पस, वो लोग हमेशा एक पैराग्राफ लिखते हैं, देखा एक पैराग्राफ है और उसके नीचे सब लिखा है, इट इज ऑलवेज दैट। पैराग्राफ होगा उसके नीचे लिखा है, देखो दिस करेक्ट। दिस लुक्स मच बेटर। ओके, ये सब रिपोर्ट का राइटिंग का जब तक नहीं करता तक नहीं समझेगा, क्योंकि ये भले वो तुमको मैं दे दूं ना कि ये रिपोर्ट लिखो, और नहीं कहते ऐसे कैसे तुम नहीं लिख सकते, इट्स बिकॉज वो एक माइंडसेट होता है लिखने का। करेक्ट सर। ओके, तुमको ही पता है कि तुमको कौन से चार्ट किधर डालने हैं, मुझे नहीं समझेगा तुमने कौन से चार्ट किधर डाले। अभी ये क्या है, व्हाई इज दिस एक्सेल ऑपरेट्स, नहीं ये इधर नहीं लिखते हैं, IHCL रिपोर्ट ये नीचे आएगा पेज ओके। पे, ऊपर नहीं आता है। दिस शुड गो अप एट द स्टार्ट, ये थोड़ा और कम हो सकता है, एक लाइन। IHCL प्रेजेंस डोमेस्टिक, ओके ठीक है फाइन। तो हाँ, तो ये ना IHCL प्रेजेंस हमेशा लिखना है यहाँ से चालू होगा, नॉट फ्रॉम हियर, ये मार्जिन है, ये जो ना इट शुड कम स्टार्ट फ्रॉम हियर। क्योंकि ना अभी व्हाट व्हेन आई एम रीडिंग इट, मुझे समझ नहीं आता किसके बारे में लिखा है, क्योंकि मुझे लग रहा है ये कोई हेडिंग है, ये कोई हेडर है। तो अगर दिस इज द हेडिंग, तो ये हेडिंग यहाँ से ही चालू होना चाहिए। ओके ठीक है सर। ओके, और यहाँ पे पूरा HODC, यहाँ पे ना इनका इफ यू सी
एक तो इन्होंने ब्लैंक ही रखा है, तो कहाँ से होता है हेडिंग, जहाँ से लिखते हैं वैसे चालू होता है, ये पूरा ब्लैंक है। ओके, Sorry to cut you, but why do they keep that blank space? नो इट्स एन हेड, इट्स अ मार्जिन, अच्छा। इट इज नॉट वाई दे मार्जिन, बुक्स में होता है ना मार्जिन हमारे। हम्म। अगर चार्ट्स वगैरह डालना है तो वो स्ट्रेच हो जाएंगे, चार्ट्स बट यू कैन यूज इट, बट इफ नहीं है तो ऐसे होता है चार्ट्स दिस, अगर तुमको दो चार्ट्स डालने हैं, तुमको लग रहा है कि दोनों यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है, तो यू कैन टेक इट ओवर हियर, बट अगर फिट हो रहा है तो दिस इज हाउ यू स्टार्ट द चार्ट। जैसे यानी कि तुमने जो किया है ये चार्ट तुम्हारा, वही तुमने तो बराबर ही किया है, यहाँ से ही चालू होना, बट इनफैक्ट नहीं हो रहा तो यू कैन टेक इट ओवर हियर, अगर इन केस, होना नहीं चाहिए, दिस इज वेरी रेयर इट हैपेंस, क्योंकि ये लोग ने और ज्यादा रिसर्च किया है, उन लोगों को रेवेन्यू और ये सब की बात की, इतना इतना डिटेल हमारे रिपोर्ट में नहीं होता, बट इन केस तुमको लगता है दो चार्ट डालना है तो ऐसा भी तुम कर सकते हो। और उसके लिए फिर यहाँ पे तुमको स्लैंग ही छोड़ना है, यू डोंट हैव टू पुट एनी कलर्स ओवर हियर, ऐसा। INCL domestic presence, अच्छा अनिकेत सी दिस आई एम नॉट एबल टू सी, क्या क्या किया तुमने यहाँ पे? वो INCL domestic मैप state डालने की government, कोशिश करी थी सर, बट वो काफी हौच पौच हो रहा था उसमें। हाँ नहीं स्टेट तो ये लाइन किसका है? ये सर इंडिकेट करा शायद कीज होगी है। मैं तो समझेगा कैसे मुझे क्या, नहीं तो की सी, दिस इज ऑलवेज, चार्ट्स आर ऑलवेज फॉर ग्रोथ, एब्सोल्यूट नंबर पे कभी चार्ट नहीं जाता है, it always सर indicates ये growth। मेरा भी प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि इसके साथ ब्रांड्स इतने ज़्यादा है ना, तो अभी देखो ये समझ ही नहीं आता, जैसे गेटवे और सिलेक्शन के बीच में क्या गैप है, मतलब एक शेड का खाली गैप है, तो मैं भी वैसे करना चाह रहा था ना, तो मेरा भी वही इशू आ रहा था सर। नहीं नहीं, तो यहाँ पे स्टेट वाइज में ऑलवेज हैव द टॉप 5 स्टेट, जो तुमको पता है, यहाँ पे सब डालने की कोई जरूरत नहीं है, टॉप 5 ओके। स्टेट्स जो तुमने यहाँ पे डाले ना, इधर टॉप 5 स्टेट्स वो में सबसे ज्यादा कहाँ से है, बिकॉज इसी अभी सब में हिस्टोग्राम एक करके एक एक मैंने एक है, किया उसका था, क्या करना है तुमको, ऐसा है। उसको अदर्स करके डाल देना है ना। हाँ अदर्स करके डालना है, हाँ हाँ, तो नहीं कि इतना सब ठीक। हर एक स्टेट डालने की जरूरत नहीं है, 5 से तुमको लगता है जो मेजर 5 स्टेट है जहाँ से रेवेन्यू आता है या जहाँ से इसके हाईएस्ट हम्म, होटल्स है, वो तुम डाल दो यहाँ पे। स्टेट्स में कैसा होगा, स्टेट्स तुम डालोगे और बार में तुम्हारे नंबर्स ऑफ कीज आएंगे, तो बेटर हो जाएगा ना, कि महाराष्ट्र में कितने कीज है। एक तो या तुम होटल डालो या तो कीज डालो, विच एवर डेटा यू गेट, यूजुअली कीज डेटा इज मच प्रेफरेबल। ओके। ओके, बॉक्स की फॉर्म कीज में है भी तब, डाल सकते हैं ना इसको ऐसे? क्या बोल रहे हो? बॉक्स फॉर्म में भी डाल सकते हैं ना, बॉक्सेस हाँ बना के इसे प्रीवियस बार्स में प्री ही बेटर होता है, चार्ट्स में ओके। डालोगे तो ग्रोथ दिखा रहे तो ही चार्ट्स में, ऐसा है। एंड सब डालने की कोई जरूरत नहीं, जिनको डेटा हर एक डेटा डालने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि ऐसा सर ना कि क्या फर्क होगा, अभी एक ही गेट में अभी अमान उसके 10-12 ही है, उसके बाद हमने उस दिन क्या पढ़ा कि उसका मेजर रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, ताज से, आज सेकंड का वाज विवांता, थर्ड वाज जिंजर, जिंजर हो गया, करेक्ट। इतना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तुम चार्ट स्पेस भरने के लिए डाल सकते हो, क्योंकि सर इतना डाल इसमें तो सकते हो कुछ वरना समझ ही नहीं आ अदर्स, रहा है। जैसे ऐसा सर है। ये JNK है, तो JNK के अंदर क्या होटल है, इससे अच्छा सर हिस्टोग्राम यूज कर सकते हैं क्या? हिस्टोग्राम, इंस्टाग्राम पे क्या दिखाओगे तुम? सर जैसे कि और ये इंडिविजुअली दिखाना पड़ेगा सर, मतलब दो हाँ चीजें वही, एक साथ नहीं दिखा सकते, सारे ब्रांड सारे स्टेट में एक साथ दिखाएंगे तो कुछ समझ नहीं ही नहीं दिखाएंगे आएगा। ना, नहीं दिखा देंगे, वही तो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में कितने होटल्स है, कितने कीज है, बस। हाँ वो हाँ बेटर है। तुमको अगर स्पेसिफिकली ताज का पता है तो ताज का फिर अलग से डालो, कि ताज का तुमको पता है ताज की क्योंकि हमको पता है 70% रेवेन्यू ताज से आता है, तो ताज के बारे में तुम अनिकेत यू कैन मोर और एक चार्ट डाल सकते हो कि ताज के होटल्स कहाँ पे है, कौन से ओके। स्टेट्स में, जिंजर के कौन से स्टेट्स में, और विवंता के कौन से स्टेट, दैट्स इट, हो गया। मतलब मुझे क्या समझा व्हेन आई एम रीडिंग दिस, ओके इसके टोटल होटल्स कितने हैं, जैसे तुमने डाले टोटल 6 होटल्स है, ठीक है, 6 कहाँ कहाँ पे है, महाराष्ट्र में ज्यादा है, राजस्थान में ज्यादा है, वो समझेगा ना मुझे ग्राफ पे कि किसके ज्यादा है, फिर एक बार समझा तो मुझे ऐसा होगा, अच्छा राजस्थान में ज्यादा है तो राजस्थान में क्या है, ऐसा, या फिर तुम ऐसा सिर्फ बोल सके होटल प्रेजेंस इन महाराष्ट्र, तुम वो 3 स्टेट्स के बारे में बात कर सकते हो कि 3 स्टेट्स में कौन से ब्रांड है, तो वो इजी हो जाएगा कि ब्रांड ओके। प्रेजेंस ऑफ ताज प्रेजेंस इन द फॉलोइंग सिटीज, जिंजर प्रेजेंस इन द फॉलोइंग सिटीज, ठीक है, तो वो तुम्हारे क्या ग्राफ्स और अच्छे हो जाएंगे, तुमको खुद में समझ में आएगा कि क्या कर रहे हो, समझा निखिल? गॉट इट। ठीक है पहले सर। पहले कितने होटल्स है,
तो जैसे मुझे पता चला अरे यार इतने सारे इसके 370 होटल है, तुमने डिफ्रेंशिएट कर दिया कि महाराष्ट्र में इतने, राजस्थान में इतने हैं, तो तुमको पहले बताया ताज के बारे में, ताज का तुम लिख सकते हो ताज 70% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम ताज, एंड फिर उसका प्रेजेंस कहाँ पे, होटल्स या कीज जो भी तुमको मिलता है वो, यूजुअली कीज आर प्रेफर्ड, ऐसे हमने बोला कीज आर प्रेफर्ड। ओके, इंटरनेशनल प्रेजेंस ये भी ठीक है, ग्राफ डाला है लुक्स पर भी यहाँ पे तुमने डाला नहीं है, 1 2 3 आ गया है यहाँ पे तुम्हारा, यहाँ पे भी ठीक है, ग्राफ नहीं हो रहा है बराबर से जा रहा है, तो बार्स बार इज टोटली फाइन। तुम देखो ये रिपोर्ट में ना सिर्फ बार्स और ये दिखेंगे तुमको, सी दिस बार्स लाइन, ठीक है ये तो अलग अलग था, देखो बार्स बार्स, तो व्हाई आर यू चेंजिंग, मैं बोला था मैप डालने को, अगर मैप हो रहा है तो ठीक है, यू विल ऑलवेज फाइंड मैप्स एंड ग्राफ, ये दिखता है, वरना ऐसे चार्ट्स होते हैं, ये वाले होते हैं, ऐसे ग्राफ्स होते हैं। अभी ये भी यूजुअली टाइमलाइन है तभी ऐसे होता है, टाइमलाइन होगा तभी यूजुअली यहाँ से ऐसा नहीं होता है। ओके, तो सी विल ऑलवेज फाइंड चार्ट्स। अभी ये लोग ने नहीं बनाया, ये ऑलरेडी कहाँ से तो उनको कॉपी पेस्ट किया है, बिकॉज ये तुम बना नहीं सकते, उन्होंने दिया है बाय सेगमेंट बन सके, देखो चार्ट्स में ही होता है, विल ऑलवेज फाइंड बार ग्राफ्स ही यूज होता है, बिकॉज इट इज वेरी इजी टू इजी फॉर योर आईज देखने को। ओके, कि यहाँ पे फिर तुम करोगे Got नहीं it. कि तुमने इतनी मेहनत की है, अभी वो दिख ही नहीं रहा है तुमने क्या किया, ऐसा है। ओके, रेस्ट ऑल इज फाइन, परफेक्ट, ये अच्छा है, उसे थोड़े बहुत चेंजेस करो। एंड ताज पोर्टफोलियो के, ताज हैज 1000 keys, हाँ ये तुमने किया है, सेल प्रेजेंट अक्रॉस मेजर, हाँ तो ये कैसा, ये अच्छा लग रहा है, सेल प्रेजेंट अक्रॉस मेजर सिटीज, ये क्या है वन, अभी ये नहीं लिखा तुमने, ये क्या होता है 12 ये होटल, 12 होटल थे सर। हाँ तो यहाँ पे लिखा है ना कि व्हाट इज दिस, बोला वापस सब की जरूरत नहीं है, मेजर ही डालो, क्योंकि इसमें भी ना अभी, और फिर कैसा होगा, हमेशा स्टार्ट राजस्थान है, स्टार्ट तो मतलब टॉप है तो टॉप से चालू करना हमेशा, ऐसे ग्राफ नहीं होता है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। फर्स्ट इज राजस्थान, सेकंड कौन सा तुम्हारा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश 6 है, फिर 4 4 एंड फिर अदर्स। ठीक है सर। ओके, हमेशा जितना डाल सको तुम 2 3 तक, 2 2, अच्छा इसके लिए बोला कि इसमें अगर कीज होंगे तो बेटर होगा, क्योंकि इसमें 2 1 सब सेम ही हो जाएंगे, तो कीज होंगे तो विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस। जो तुम्हारे पास है ना डेटा कीज का था ना, हाँ हाँ है सर। कीज का अच्छा होगा डेटा। ठीक है सर। तुम यहाँ पे लिखते हुए बोल सकते हो कि राजस्थान हैज 12 होटल्स, कीज कितना है, एंड फिर वो यहाँ पे तुम डाल सकते हो, फिर होटल लिख सकते हो, यहाँ पे तुम कीज का डेटा डाल सकते हो। इसमें कुछ नहीं डालना है, ये साइड पे फोटो, फोटो यहाँ पे ही, फोटो हटा दूं क्या सर? फोटो हटा, हाँ पहले तो ये क्यों डाला है फोटो, क्या है, वो विजुलाइज करने के लिए कि कौन सा कैसा होटल है। नहीं तो ऐसा तुम डाल सकते हो, ताजमहल, तो इसके बारे में कुछ लिखना होता है, ताजमहल मुंबई इज एन आइकॉनिक होटल विच इज अच्छा हैविंग एन एवरेज रूम रेट ऑफ एग्जांपल जो भी है, इतने कीज है, और फिर डालो तुम नीचे, फाइन। ठीक है सर। फोटो डालोगे तो उसके बारे में लिखना है, ठीक है। सही, ये लोग ने भी एक फोटो, हाँ देखो ये लोग ने शेरेटन होटल कैसे डाला है, शेरेटन होटल का डाला है, और उसके बारे में लिखा है वो लोग ने यहाँ पे, या फिर शेरेटन होटल एट 2% yield बाय इन 2025 टर्न इनटू 18% ROC, देखो, तो ऐसा कुछ तुम डाल सकते, इफ यू वांट टू टॉक, फोटोज डालने हैं तो फोटोज डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ऐसे रैंडमली फोटोज नहीं डालने होते। फिर यहाँ पे भी क्लाइड्स तो लिखोगे, क्लाइड्स का कौन सा होटल है ये, ओके। या फिर तुमको कोई स्पेसिफिक डेस्टिनेशन लिखना होगा कि ना, एग्जांपल अपन जो बात कर रहे हैं कि अयोध्या में द टूरिज्म हैज इंक्रीज इन अयोध्या, तो तुम बोल सकते हो ये होटल है, इसके इतने ब्रांड्स है उधर, बेटर। ठीक है सर। ओके, ये वापस 2 डेसिमल क्यों है, एक ही डेसिमल ना सब जगह, ये क्या हाँ ये होगा, रिमूव करना स्प्लिट पड़ेगा। ऑफ, नहीं स्प्लिट होगा तो इट इज ऑलवेज इन द पाई, ओके। स्प्लिट है ना, क्योंकि दिस विल कंट्रीब्यूट टू 100%। नहीं सर, ये स्टेट वाइज डिमांड था कि IHCL की डिमांड स्टेट probable वाइज थी। split of hotel demand,
वो सॉरी जगह खाली पड़ रही थी रुपीज सर, है तो क्या ये मैंने परसेंटेज है तो फिर क्या है? आई एम नॉट गेटिंग व्हाट इज दिस 5.1%, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? बेसिकली सर, मुंबई कमांड्स 5% incremental demand in the IHCL hotels. देन दिल्ली का 4% इंक्रीमेंटल डिमांड था, ऐसे ही तो है। फिर एक क्लैरिट्स में इसमें क्यों आया सब? वो जगह खाली पड़ रही थी सर, एंड उसका डेटा कुछ मिल नहीं रहा था, तो मैंने फिर ओवरऑल उसका ले लिया। नहीं तो क्लैरिट के साथ तुम और कुछ ऐड कर सकते हो, चाहिए तो क्लैरिट को छोटा करके, जो छोटा है ना उसका आर्म ट्रेल्स है उसके बारे में वो डाल सकते हो, जो छोटे पार्ट्स है अच्छा। ऐसा कर सकते हो। या फिर वो क्यूमिन है, छोटा ही होगा ना उसके बारे में, वो डाल सकते हो। हाँ, ये कुछ सात कम कर सात सकते हो, डाल जो दिया। इंपॉर्टेंट नहीं है वो कम करे, चार्ट थोड़े कम कर सकते हो, छोटे कर सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे वर्ड वर्ड वाइट स्पेस रह गया दोनों के बीच में। ये तुमने आई थिंक ज्यादा दिख रहा है, तुमने क्या यूज किया है? फॉन्ट कितना है? 10 होना चाहिए, ये 10 से ज्यादा 12 है चलता सर। है। नहीं नहीं 10, रीडिंग फॉन्ट इज 10। ओके। ओके। 10 मैक्स, और ये हेडिंग 11 ऐसा जो तुमको डालना होगा अच्छा। तो अच्छा। ये 12 चलेगा। दिस इज 12। वो इसके लिए बड़े लग रहे हैं, काफी बड़े लग रहे हैं ना, बिकॉज सुना 100 हमेशा अपने इस पे 100 पे रख के देखना कितना लग रहा है। ओके। ओके, जूम पे 100 ही था ना हमारा, हाँ हाँ ये रहा, ये बड़ा लग रहा है, 10 होता है। ओके, विवान का 1-2 साल का ही है क्या रेवेन्यू? 2 साल का ही था, मतलब वो 1 साल का था, and उन्होंने कीगर ग्रोथ दी थी, तो पिछले साल का उससे ड्राइव कर लिया। अच्छा, नहीं ऑपरेशनल पाइपलाइन इसमें भी रेवेन्यू स्प्लिट रूम, पर ये क्लैरिट्स का नहीं है, ये तो पूरे होटल का रेवेन्यू स्प्लिट है ना। हाँ करेक्ट सर। तो क्लैरिट्स में क्लैरिट्स क्यों? का स्पेसिफिक मिल नहीं रहा था कहीं पर। हाँ तो नहीं डालो ना, नहीं डाल रहा नहीं। ओके। क्लैरिट्स है तो मेरे को, मैं अज्यूम करूंगा कि क्लैरिट्स के बारे में तुम बात कर रहे हो। अच्छा। ठीक है, तो क्लैरिटी कितने रूम्स है वो डालो ना, कितने थे कितने होटल्स बढ़ गए वो एक बार आप डाल ठीक है सकते हो। sir, वो डेटा डाल। ठीक है, ऑपरेशनल कौन से सिटीज में वो डाल सकते हैं, लोकेशन हमने बोला ना क्या इंपॉर्टेंट है होटल में, इसके लिए मेट्रिक्स आर इंपॉर्टेंट, एडीआर, रेवेन्यू पार, रेफ पार, लोकेशंस, कीज, बस ये 4 चीज पे तुम्हारा होना चाहिए, इसमें से जो मिलता है वो तुम डालो हिस्टोरिकली, नहीं मिलता ठीक है है। फाइन। और उसके फिर यूजुअली ट्रेंड्स डालते हैं, चार्ट में ट्रेंड है कि पहले कितना था अभी कितना है। लग्जरी हाइट्स ऑपरेशन टू operates 2 hotels with 257 keys। हाँ तो इसके बारे में कुछ लिखना, 2 hotels 257 keys of FY25। हाँ तो तुम इसका पूरा डाल सकते हो कि ये कौन सा होटल है इतना लग्जरी, कि 2 ही होटल है उसके 257 कीज है। ये लिखा है सर नीचे। तो operational footprint is currently considered in high value metro markets with 1 hotel in 95 keys दिल्ली, ensuring a strong। हाँ तो इसका तुम डाल सकते हो ना बेशक, कि दिल्ली में है ना 152 कीज है, मुंबई में 95 कीज है। और कोई है क्या किधर इसके कीज? इसके एक तमिलनाडु में था, बट वो डिटेल्स मिल नहीं रही उसकी। 132 95 ऑलमोस्ट हो गया, ऑलमोस्ट 230 हो गया ना ये, 227 30, ठीक है। फिर अदर्स डाल सकते हो बाकी, ठीक है डाल सकते हो, जितना भी बचा वो अदर्स में डाल दो, केरला में डालो, या जो भी तुमको पता है वो। इसके एडीआर नहीं लिखे, रेफ पार या एडीआर, क्लैरिट्स के कितने हैं पता ना मुझे, हर एक रिपोर्ट में तुम्हारा 4 चीजों में देखूंगा, लोकेशन, कीज, लोकेशन, रेफ पार, एडीआर, और ये एक्सपेंशन ठीक हो है। रहा है नहीं हो रहा है, बस दैट्स इट। और कुछ नहीं लिखना तुमको ज्यादा। डोंट अननेसेसरी ट्राई टू ऐड चार्ट्स, उसी में चार्ट्स डालो। ठीक है सर। अभी 2 ही है, एक्सएमएल 2 ही है, जैसे तुमने बोला अभी इसका 2 ही मिल रहा है होटल्स हम्म। और मतलब मुंबई और दिल्ली, तो मुंबई में कितने कीज है, दिल्ली में कितने कीज है, दैट्स इट। मुंबई दिल्ली दो दो ही हो गया, कीज का तुमने डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है सर। ओके, बाकी लिखा अच्छा है, मतलब व्हाटएवर यू हैव मेड द प्रेजेंटेशन इज वेरी गुड, थोड़े फार बस नो थॉट प्रोसेस। ये कैसा चार्ट अच्छे से आया, और ग्राफ क्यों नहीं आया उसका, क्यों नहीं आया? तुमने फर्स्ट में डाला था तभी, एक्सेल से किया होगा तुमने। एक्सेल से करा है। ये अच्छा है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से इस पे भी नंबर्स आते हैं। मतलब वो डार्क, मतलब 3 होटल्स हैं, एंड लाइट लाइट होते होते 1 हो जाएगा। अच्छा ओके, ये क्या अबाउट ज्योग्राफिकल स्प्लिट एज ऑफ व्हाट इज दिस?
See, you should write यहाँ पे क्या लिखा है तुम, जैसे यहाँ पे देखो ना, they have specified mentioned it, हमेशा एक लाइन होगा तभी चलेगा, हेडिंग नहीं चाहिए. ओके, तुम क्या बोल रहे हो? What are you trying to say over here? Geographical split as of 2025. मतलब क्या उसके है, होटल्स कितने कहाँ पर है? सॉरी, उसके होटल्स कितने और कहाँ पर है? कहाँ पे? हाँ तो वो नो होटल स्प्लिट, बट 3, 2, 1 ऐसे होना चाहिए ना, ऐसे क्यों दिया है कलर में? मतलब मुझे पता है यहाँ पे 3 है, 3 अभी यहाँ पे कितना है 2. सिर्फ विवांता का ना ये विवांता करेक्ट. तो यहाँ पे आया तो बेटर होता है, चार्ट्स पे लिखे ना तो ओके बेटर है. इधर है नंबर ऑफ होटल्स एज ऑफ 2025. ठीक है, ठीक है सर. समझना चाहिए क्या है ये. एंड अगेन ये सब बीच पे से नहीं, शुड स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट ओनली. राइटिंग शुड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट. अच्छा ओके, एंड ये ग्राफ भी अगर चाहिए तो तुम, हाँ ये यहाँ पे तुम थोड़ा स्प्लिट कर सकते हो, यहाँ पे डाल के यहाँ पे कुछ लिख सकते हो चाहिए तो तुम, इफ यू वांट, क्योंकि वापस वाइट स्पेस काफी दिख रहा है इसमें. ठीक है सर. ठीक है, कि एवरेज इसका कितना होता है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं महाराष्ट्र और गुजरात में इसका रेफ पर ज्यादा है, इसमें कम है, या सबसे ज्यादा कीज किधर है, तुम यहाँ पे छोटा लिख सकते हो. डन सर. रेस्ट इज गुड, आई थिंक नो इश्यूज इन दैट. बट और भी इसको बड़ा कर सकते हो, तो क्या तुमको एक बार हो गया कि यू नो एवरीथिंग अबाउट IHCL, तुमको रात को 12 बजे भी पूछे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. तो मेक श्योर ये तुमको प्रेजेंट भी करना है बाद में, तो उतना ही लिखो जितना प्रेजेंट कर सकते हो. अच्छा हाँ ये चार्ट्स का देखना, क्योंकि चार्ट्स का क्वालिटी इज नॉट कमिंग प्रॉपरली. हाँ मैं इसका देखता हूँ. सर इसके एक एक कंपनी के लिए 5 to 7 पेजेस इनफ है ना? डिपेंड ऑन द कंपनी टू कंपनी ना. लाइक मैं लेमन ट्री के लिए कर रहा हूँ सर, तो उसके खाली 4 ही ब्रांड्स है. हाँ 4 ब्रांच है बराबर, हाँ 5 ठीक है, चल जाएगा. यूजुअली जितना बड़ा कर सकते हो करना है, जितना चार्ट्स तुम डेटा निकाल सकते हो. अभी देखो ये है, इसमें सैमी ऑर्डर का इसने कितना लिखा है, इसका अगर देखे कंपनी प्रोफाइल है ना, इसका कंपनी चालू होता है. सर मैंने ये सब ऐड नहीं किया, ये ROC ROE ये नहीं सब वो उसकी फाइनेंशियल जरूरत डिटेल्स नहीं, नहीं डाला. हम अभी उसकी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अभी कंपनी की बात कर रहे हैं. सिर्फ लोकेशन, रेवपार और ऑपरेशनल कितना है, पाइपलाइन में क्या है, कौन से लोकेशंस है, की डेस्टिनेशन क्या है, ये सब डाला है. यस, इसका चालू होता है, ये तो सब इन्वेस्टमेंट रैशनल है. सर आप मेरी रिपोर्ट एक बार चेक कर लोगे सर, ऑटो रिपोर्ट से? क्या बोल रहे हो? सर ऑटो रिपोर्ट मैंने दिया आपको, एक बार आप चेक कर लोगे? दूर में अभी निकलना है, कल कल बात करें इस पे. ठीक है सर, कल करते हैं. मेरे को एक बार पिंग करना वापस की. ओके सर. हाँ इसका देखो, इसका कंपनी रिपोर्ट यहाँ से चालू होता है. कंपनी रिपोर्ट इसका कितना, 1 2, इसका इसने ये सब डाला है, इसके 2-3 पेज का बनाया है इसने. ठीक है, दैट्स फाइन. जरूरी नहीं हर कंपनी का छोटा भी होता है. अभी वो ये लोग ना बहुत जल्दी बनाते हैं रिपोर्ट्स, बिकॉज ये रिपोर्ट में एनालिसिस भी है, हमारे रिपोर्ट में एनालिसिस नहीं है. इसके लिए वी हैव टू मेक इट थोड़ा समझने, कंपनी समझने के लिए. बिकॉज दिस एनालिस्ट माइट बी नोइंग अबाउट द कंपनी, उसको कंपनी समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी ने पूछा तो तुमको जरूरत पड़ेगी समझाने, बिकॉज यू आर अ फ्रेशर. तो सर आइडियल टाइम क्या होता है ये रिपोर्ट क्रिएट करने का? 15 दिन मैक्स. 15 डेज 15 डेज मैक्स. हाँ वो भी 15 डेज में तुम्हारा रिपोर्ट, मॉडल्स, एनालिसिस सब करके होना चाहिए. ओके. फॉर्मेटिंग के साथ. सर रिपोर्ट सॉरी सर, सो हाँ हम जो रिपोर्ट बनाते हैं जो 15 दिन के अंदर, तो वो टीम में बनाते हैं क्या इंडिविजुअल पर्सन को बनाना पड़ता है? तो क्या बनाते हैं, नहीं कैसा होता है, 2 जन का टीम होता है. तो अभी कैसा होता है ना, वाई यू इफ यू आर हायर्ड एज एन एनालिस्ट, तो ना ये जो बोला ना, ये जो सेकंड टीवी है, ये पूरा रिपोर्ट इसने बनाया होगा. ये सिर्फ ओवरव्यू करता है, इन्वेस्टमेंट रैशनल क्या डालना चाहिए, उसने जो लिखा है बराबर है कि नहीं, ये वैल्यूएशन वो डालता है, ये सिर्फ एनालिस्ट करता है. बाकी जो भी तुमको डेटा पॉइंट लग रहा है ना, ये सब जितने भी टेबल्स है, जितने भी चार्ट वेट्स है, जिसमें कोई एनालिसिस नहीं लगता है, दिमाग नहीं लगता है, वो एसोसिएट ही बनाता है.
तो चलो तुमको जो मैं काम दे रहा हूँ ना वो यही काम है, मतलब मैंने भी यही काम किया है रिपोर्ट बनाना। तो मेरा जो एनालिस्ट था वो कुछ नहीं करने का, उसका क्या काम होता है ना, एनालिस्ट इज फॉर मार्केटिंग। वो रिपोर्ट से, अभी जो रिपोर्ट तुमने बनाया वो जाके इसको मार्केट करेगा बाहर, और फिर उसको भी जैसे चाहिए उसने वो डाला होगा रिपोर्ट में कि मुझे इधर ये चाहिए उधर वो चाहिए, इन्वेस्टमेंट एसेट में क्या लिखना है, तो वो शायद से एक बार रीड गो थ्रू करता है एंड वो फिर अपने हिसाब से चेंजेस करता है। बट फॉर्मेटिंग ये सब एसोसिएट ही करता है। फॉर्मेटिंग का यूजुअली टीम होता है डिपेंडिंग ऑन, मैं जो कंपनी में था उधर फॉर्मेटिंग का टीम नहीं था, इसके लिए मैं बोलता तुम करो, क्योंकि हर जगह फॉर्मेटिंग का टीम नहीं होता। और फॉर्मेटिंग भी वो लोग सिर्फ प्रेजेंट वो तुम्हारा जो चार्ज वीट अगर बराबर नहीं है तो वो लोग वो सिर्फ रिफरेंस करते हैं, वो ये चेंज करते नहीं बैठते कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, वो लोग सब रीड नहीं करते। वो लोग सिर्फ दिखना अच्छा चाहिए तो जैसे ये लोगो डाल दिया, वो फिर ये कुछ डाल दिया, तो वो लोग वो सब करते हैं फॉर्मेटिंग वाले, ये भी खुद ही करते हैं इनफैक्ट, ये भी फुल फ्रंट पेज है वो एनालिस्ट ही डालता है, ताकि छोटे मोटे बचे लोगो डालना है वो सब प्रोडक्शन टीम करता है। और एक बार वो इंग्लिश गो थ्रू करता है बस, उसको भी टाइम नहीं होता है क्योंकि एक ही प्रोडक्शन टीम होता है। बट मेरे ऑफिस में तो नहीं था, वो तो सब तो मैं ही करने का, वो हर एक डिपेंड ऑन कंपनी। और वो भी प्रोडक्शन टीम भी उसी के साथ काम करता है जिनको पता है कि सिर्फ 10% ऑफ द रिपोर्ट उसको चेंज करना है, वरना पता चले तुमने एग्जाम्पल अनिकेत अगर बनाता है, अनिकेत ऐसा रिपोर्ट बनाता है ये सब चेंजेस है, तो वो कभी फॉर्मेट करेगा ही नहीं है सबको, बोलेगा तुम करके आओ, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ अनिकेत को सब करके आओ, फिर उसके आगे मैं देखूंगा क्या करना है, और अगर कुछ छोटा मोटा रह गया तो बना देता ओके हूँ। तो सर, तुम्हारा थैंक काम यू। भी ये, तो पैसे इसी के होते हैं। टाइम मेरा ऐसे ना, वाई आई डिफाइन मोर ऑन टाइम, आई विल टेल यू। अभी जो ऋषभ बोरा था फ्रॉम EM14 बैच, ही गॉट प्लेस्ड इन HDFC सिक्योरिटीज, एंड एक EM12 का लड़का था वो CA CFA था, उसको सिलेक्ट नहीं किया, पता है क्यों? क्योंकि जब एक टास्क दिया था करने को, दोनों को, दोनों CA थे, एक तो लेवल 2 था और तीसरा एक था MBA फाइनेंस था, तो तीनों को मैंने रेकमेंड किया था। जो MBA फाइनेंस वाला था वो कभी रेगुलर था नहीं क्लास में, तो ही वाज नॉट रेगुलर इन द क्लास, रिपोर्ट्स नहीं बनाने के टाइम पे, मतलब लेट लेट करने का। जो ऋषभ बोरा और आदित्य करके थे, तो ऋषभ बोरा उसको जैसे दोनों को एक टाइम पे ही वो इंटरव्यू ये किया था, मतलब मेल भेजा था कि ये तुमको भेजना है, कुछ मॉडल था बना के भेजना है। ऋषभ बोरा सेंट इन लेस देन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर ही उसने भेज दिया। उसका ठीक है, थोड़ा बहुत उसने मुझे मुझे उसका फीडबैक आया कि ही वॉज पार, मतलब ठीक है थोड़े बहुत मिस्टेक्स किए बट ठीक है, इतना मिस्टेक चल जाता है, इट कैन अज्यूम। आदित्य वॉज परफेक्ट, बोलते आदित्य ने सब कुछ बराबर किया है बट ऋषभ 4 घंटे लगाए, यू सी। तो उसने लिया ऋषभ को ही, जस्ट बिकॉज आदित्य ने 4 घंटे लगाए बेचने को। तो मैंने उसको पूछा रही, ही वॉज वर्किंग, शायद से उसमें बिजी होगा, बट वो उसने बोला कि नहीं मैं तो कर रहा था, मुझे इतना टाइम लगा। वो परफेक्ट था, उसके नंबर सब बराबर थे, बट टाइम ही ज्यादा ले लिया तो फिर उसका कुछ मतलब नहीं है। दैट इज ऐसे 9 बजे के पहले अगर इफ यू आर नॉट सेंडिंग न्यूज लेटर, मतलब खुद के लिए, तो फिर ऐसा है कि यार वो टाइमिंग ही चला गया तुम्हारा मार्केट का। तो तुमको भी ना एज एन एनालिस्ट यू ऑल्सो हैव टू रिएक्ट ऑन द न्यूज। तुम जो पढ़ रहे हो, तुम्हारे घर पे बात करो या तुम्हारे फ्रेंड्स हैं उनके साथ बात करो, कह रहे आज मैंने ये पढ़ा, तुमको क्या लगता है। तो ये मॉर्निंग कॉल में उसी के लिए रखता हूँ कि यू कम एंड इंटरैक्ट, कि तुमने जो पढ़ा है आर यू गेटिंग इट, तब तुम आर यू गेटिंग इन द जोन ऑफ बीइंग एन एनालिस्ट। वरना इट इज वेरी डिफिकल्ट। एनालिस्ट भी IB हो गया, सब फील्ड हो गए, ओपन हो जाते हैं इसमें। यू गो टू द इंटरव्यू, बोलो कि सर मैं रोज ये करता हूँ, तुमको ऐसे भी कौन से भी फील्ड में ले लेंगे, बट रोज करते हो उसका प्रूफ देना है तुमको कि रोज तुम क्या कर रहे हो। वैसे ये अनिकेत को बहुत टाइम लगा होगा बनाने को, अनिकेत कितना टाइम लगा बनाने को? ये 2-3 दिन लगे सर। हाँ तो बहुत टाइम लगता है बनाने को, आई कैन सी दैट यू हैव डन अ फैंटास्टिक एफर्ट, बट सी आफ्टर इवन आफ्टर डूइंग दैट देयर आर सो मेनी मिस्टेक्स। देखो मतलब यू हैव टू इम्प्रूव सो मच ऑन इट, ऐसा है। तो वो जब तुम रेगुलरली करते तभी वो इम्प्रूव होता है। तुम एक दिन अचानक से बोलोगे सर मैं रिपोर्ट बना दिया, वो रिपोर्ट तुम्हारे हिसाब से अच्छा है, but you see the level of detailation is over here। तो तुमको दिख नहीं रहा होगा, तुमको लगता होगा सिर्फ रिपोर्ट है, बट मैं तुमको ये पॉइंट आउट करूंगा कि ये डिटेल है, ये डिटेल है, तो तुमको समझ में आएगा, बिकॉज द सेम थिंग आई हैव डन। मेरे भी रिपोर्ट ऐसे ही होने के। तो आज भी जब किसी को हायर करना होता ना, वो पहला रिपोर्ट ही देखता है तुम्हारा। फाइनेंस विनेंस तो वो तो इंटरव्यू राउंड में पता चलेगा तुमको कितना फाइनेंस आता है, बट पहले अगर तुम्हारा इनिशियल स्क्रीनिंग रिपोर्ट पे ही होता है। तुम जो CV भेजते हो ना, कुछ मतलब का नहीं है वो CV IB रोल्स के लिए। सर आई एम गुड एट फाइनेंशियल मॉडलिंग,
I am interested into stock market. I have done a research of 30 companies. एक तो लड़का था मुझे बोला था I have done a company of 100 companies. ऐसा मुझे आके बोला था, सोचो। अनिकेत, तुमको कितना टाइम लगा एक कंपनी समझने को? हफ्ता 10 दिन सर। हाँ, वो मुझे बोलता है कि मैं 100 कंपनीज मैंने देखा है। क्या होगा? ओके, तो अनिकेत वर्क ऑन इट। अच्छा था ये, इट वाज अ गुड रिपोर्ट, आई अप्रिशिएट इट। बट वो थोड़े बहुत चेंजेस करने, एक बार कर लेना। तो एक बार तुम्हारा हो गया ना तो यू कैन मेक दूसरा रिपोर्ट बनाने में इजी हो जाएगा। हाँ सर। ओके ओके गाइस, थैंक यू। आई हैव टू लीव। अब तो तुम्हारा रिपोर्ट कल देखते हैं, ठीक है? एक बार Okay, मिलते हैं। sir. Okay guys, thank you. See you थैंक यू सो tomorrow. मच सर। Thank you everyone. Thank you, sir.